See, let me tell you a fun fact. Indian freelancers think that working from home, money. Content writing is money. Freelancing sites are money. LinkedIn is money. Everyone talks about money. Everyone thinks that, when you will see posts, you will think like everyone has that kind of money. But when you go out in real life, in meetups, you meet people, you see what they are doing, how they are spending, and all that kind of stuff, you will feel that this person is nowhere near to his online persona. So people have made it two different personas, especially Indian freelancers. One is their online persona where they are the top G. One is their real life persona where they don't stand against a chance like real ones, like you and me. So let me tell you exactly what is it that Indian freelancers are doing that's keeping them broke, despite them not accepting that they are broke. They are like, we have made it, because people have their own cocoons, right? Some people think that 40,000 a month is a very big deal. Some people think that 4 lakh a month is not that big of a deal. So there are different kind of people. But let me tell you exactly why majority of Indian freelancers are just meeting ends and not having that kind of money like their international counterparts. The number one thing for that is low paying clients is equal to slow death. Yes, I have myself said that low paying clients are the clients that you should work with. You should, hang out with them initially when you have no portfolio, no experience. But you cannot just make your entire personality around low paying clients. That's a very simple thing. भाई अब सारी उम्र अगर लो पेइंग के साथ ही रहोगे, हाई पेइंग पे कब जाओगे? लो पेइंग को एक बार तो छोड़ना पड़ेगा ना. इवन इफ यू आर एज अ किड, यू पास क्लास थर्ड, यू गो टू क्लास फोर्थ, यू गो टू क्लास फाइव. अब एक क्लास में ही सारी उम्र रहोगे, उम्र तो बढ़ जाएगी बट क्लास तो वो ही रहेगी ना. अब 25 साल का आदमी फिफ्थ क्लास में कैसा लगेगा? So that is the thing. You need to move out from the low client mindset. Low clients are there to provide you the base. Now you have the base. How you launch? That is your problem. That is your thing that you have to do. But if you just stay on the base the entire time, you are यू आर ऑन borrowed टाइम एंड यू आर गोना बी किक्ड आउट. और इवेंचुअली फिर तुम्हें कॉर्पोरेट में ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा, चाहे छुट्टे ब्रेक में मौज काटना, दोस्तों के साथ ट्रिप मारना हर दूसरे तीसरे महीने, ईएमआई टू ईएमआई रहना अपने एंड मस्त मजे की जिंदगी. वो नहीं करना. देन गेट आउट ऑफ द लो पेइंग क्लाइंट ट्रैप. और उसके मैं टाइम लाइन दे देता हूँ, फिर कहोगे, वरना मेरी छाती फूकोगे कि भाई व्हाट इज इट. सी, लो पेइंग क्लाइंट्स at max 1.5 year. I'm assuming the case that you are a slow learner, you operate very slowly, you take time to digest things, then barest maximum is 1.5 year. Anything above that, and if you are not able to scale, you are doing something very pathetically wrong. If you are somebody who is watching this और तेरा 1.5 साल हो गया और उसके बाद भी you haven't scaled and got high income clients, see what is low paying, what is high paying. Let me define that for you so that it gets more easier. देख कितनी easy life कर देता हूँ, and I don't even ask for like, share, subscribe. तो ठीक है, चलता है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, क्या कर सकते हैं. तो what you have to do is, low paying client is somebody who is paying you below the market rate. अब मार्केट रेट ढूंढना पड़ेगा, बट मार्केट रेट उन्हीं चीज़ों का ढूंढना जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो. अब तुम कहीं एजेंसी का मार्केट रेट देख के अपना फ्रीलांसिंग का मार्केट रेट उससे मैच करने जाओगे ना, कोई नहीं मिलेगा फिर. एजेंसी जिस काम के 2.5 लाख लेती है, फ्रीलांसर अकेला वो काम 1 लाख में कर देगा, क्योंकि एजेंसी को ज़्यादा बंदे लेने पड़ते हैं, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ज़्यादा उनकी रीच होती है, इसलिए वो प्रीमियम चार्ज करते हैं. फ्रीलांसर एक बस एंड टू एंड वो सर्विस प्रोवाइड कर देता, तो उसका रेट कम रहता. तो पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. मार्केट रेट पता करो अपना क्या है, तुम्हारी स्किल का, सर्विसेज का. अगर उससे कम तुम्हें कोई दे रहा है या उतना भी दे रहा है, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल. 1.5 साल के बाद भी मार्केट रेट से कम पे हो, कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है फिर. सेकेंडली, एक दिन बैठ के यू नीड टू फिगर आउट व्हाट आर यू डूइंग. एंड नो, दिस इज नॉट व्हाट आर यू डूइंग वाला व्हाट आर यू डूइंग. इट्स लाइक, आर यू बिल्डिंग अ बिजनेस और आर यू डूइंग पेड टास्क. देख फर्क है. बिजनेस में एक्सपेंशन होता है, स्केलिंग होती है, नए क्लाइंट्स ऐड ऑन होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, नए डायनामिक्स अनलॉक होते हैं. इफ़ योर वर्क इज़ लाइक कि एक क्लाइंट है, वो काम दिए जा रहा है, तुम करे जा रहे हो. एक क्लाइंट है, काम दिए जा रहा है, करे जा रहा हो. कौन सी फ्रीलांसिंग हो रही है ये कहाँ की फ्रीलांसिंग है? फ्रीलांसिंग में आए ही तो इसलिए थे कि यू हैव दैट फ्रीडम ऑफ योर टाइम एंड यू हैव द पावर टू हैव दैट फ्रीडम इन योर एंड, कि मेरे को जब चाहे मैं स्केल कर लूँ, जब चाहे मैं इसको स्केल ना करूँ. यू ऑपरेट ऑन योर टर्म्स. अभी तुमने एक क्लाइंट पकड़ लिया, उसी के साथ लगे हुए, वो क्लाइंट काम दिए जा रहा है, तुम करे जा रहे हो. एक्सपेंशन कहाँ है? रीच कहाँ है? व्हाट न्यू थिंग्स यू आर ट्राइंग आउट? आर यू ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम? हैव यू ट्राइड बिल्डिंग अ टीम? ठीक है, नहीं करनी, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, एक बार ट्राई तो करके देख, क्या पता इट वर्क्स आउट फॉर यू.
फ्रीलांसिंग हिट एंड ट्रायल है भाई, तुम ऐसे माइंडसेट के साथ बैठ ही नहीं सकते कि यार ये मेरी चीज़ नहीं है। आई एम अ वेरी सोलो गाय, आई स्टिल ट्राइड बिल्डिंग एन एजेंसी, आई शट इट डाउन आफ्टर सीइंग दैट ठीक है, इट डिडंट वर्कड आउट। बट क्या पता, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई थॉट आई कुडंट एक्सेल इनटू इट, लाइक वेब 3। भाई वेब 3 एक ऐसा नीश है जिसके अंदर टेक्निकलिटीज इतनी ज़्यादा है, बट आई एम अ नॉन टेक पर्सन, आई एम स्टिल इनटू इट एंड आई एम डूइंग प्रीटी डिसेंट देयर। वही सारी चीज़ें ना फिगर आउट करना पड़ता है, दैट्स द रीजन आई ट्राइड 20 प्लस निशेस बिफोर स्विचिंग डाउन टू वेब 3। तो ट्राई एंड डू दैट थिंग। थर्ड थिंग इज, देख मैं सिस्टम विस्टम का वैसे फैन हूँ नहीं, तो नो सिस्टम्स, नो ग्रोथ, नो प्लान। ये मैंने बहुत देखा। अगर मैं फ्रीलांसर से पूछूँ ना व्हाट इज़ योर सिस्टम, एंड बाय सिस्टम लाइक माय सिस्टम डिफरेंट, डेफिनेशन इज डिफरेंट। एक तो सिस्टम वाला सिस्टम है, दैट्स नॉट माय सिस्टम। माय सिस्टम सिंपली मीन्स दैट हाउ डज योर डे लुक्स लाइक, what kind of tasks you pull out in a day, what kind of and what percentage of your time, कितना हिस्सा तुम्हारे दिन का गोज इनटू एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। क्योंकि देख दो चीजें हैं, या तो तू सर्विस प्रोवाइडर है या एक एम्प्लॉई है जो हु इज ऑपरेटिंग अंडर द डिसगाइज कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ भाई। तो भाई फिर कॉन्ट्रैक्चुअल तो है ही, फ्रीलांसर है तो, बट यूर काइंड ऑफ एन पार्ट टाइम एम्प्लॉय वहाँ पे, तू फिर फ्रीलांसर नहीं है भाई। फ्रीलांसर की मेन पावर ही दो चीज़ों के अंदर होती है, कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर क्लाइंट्स। और वो तेरे पास नहीं है। अगर तूने उन दोनों में से एक भी पिलर तोड़ दिया तो काहे का, कहाँ है भाई फ्रीलांसर? फिर तू किसका फ्रीलांसर है? नहीं है फिर तू फ्रीलांसर, देन यू आर सिंपली अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो एक पार्ट टाइम गिग कर रहा है, यू आर नॉट अ फ्रीलांसर। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द मेजर पॉइंट, नॉट स्केलिंग। सी यू नीड टू स्केल, you need to scale. Otherwise, what is the entire point of freelancing if you were to tie to a salary? Then there is no point of doing freelancing if you were to tie to a salary. Because then you could have gone for a corporate job. There you will like, get a lot of perks like your health insurance, your family insurance, your corporate cover, your PF, EPF, your tax deduction, all that kind of unnecessary. Oh, sorry, not unnecessary, the necessary and unnecessary things. But you are coming here, you are doing the work of a full-time employee kind of in the part-time disguise. So there is no point of doing that. You need to scale, and you need to scale now. Now is the time, because the best time has already passed and the second best time is right now. You need to scale it up. भाई अगर तुम scale नहीं कर रहे हो and you are freelancing, then how long do you think you are gonna sustain in the industry? Without scaling you cannot sustain. This industry, this whole entire thing तुम्हें दिखने में बहुत छोटा लगता होगा, but the amount of kids that are getting into it, कॉलेज के अंदर जो हमारा वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, जो हम यूरोप से और अमेरिका वाली साइड से, दैट इवन आर college students want to be financially independent now, that is a very good thing for the economy, for those students who are in their college, who are getting taste of money, their own earned money from a side gig at that age, that is a very nice thing. पर भाई वो लोग अगर साइड गिग में उनको चस्का लग रहा है और वो अगर मेन उसमें घुसने लग गए, तो तेरा तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना भाई। तो दैट यू नीड टू फिगर आउट ना कि हाउ कैन आई मेक दिस इवन बेटर नाउ। अभी इधर से इसको मैं और अपना कैसे अपस्केल कर सकूं, ऐसी होल्ड बनाऊं कि मेरे को कोई ना हिला पाए, इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ होता रहे, मैं और मेरे क्लाइंट्स यहीं पे रहेंगे। तो दैट काइंड ऑफ स्टफ यू नीड टू फिगर आउट ऑन योर ओन। अभी सब कुछ वेब ऑफ नहीं बता सकता, वेब ऑफ कैन जस्ट गाइड यू दैट यू हैव टू डू दिस इज द वे, नाउ पेविंग योर वे, वॉकिंग ऑन दैट वे, यू रन, यू वॉक, यू क्रॉल, यू सिट, यू रेस्ट, दैट इज अप टू यू। देख बिजी है तो आई अंडरस्टैंड, बट बीइंग बिजी को कम से कम डू नॉट मिक्स इट कि इफ यू आर बीइंग बिजी देन यू आर बीइंग प्रोडक्टिव। क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बैंक बैलेंस में दिखनी चाहिए इवेंचुअली। कुछ टाइम के लिए मैं मान रहा हूँ वो बात कि ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर अ लेस प्राइस, यू आर गेटिंग द स्किल, यू आर गेटिंग द एक्सपोजर। एक्सपोजर के चूरण पे सारी उम्र नहीं निकलेगी। एक पॉइंट होता है हर चीज़ का, इवेंचुअली चीज़ें बॉइल्स डाउन टू द बैंक बैलेंस। चीज़ें तेरा खुद का कर जाएगा यार कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ मनी दैट आई शुड गेट, व्हाट द हेल इज गोइंग रॉन्ग। और वहां पे द ओनली पर्सन हु कैन टेल यू व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, अपार्ट फ्रॉम अ मेंटर, is you sitting down with your thoughts and writing it down and seeing that what is happening and what's not happening. So that's the entire thing for this video. Like, I don't have any fancy CT, I don't want to sell the course, I don't want you to get under my wing or all that stuff. That's up to you, that's your call. I properly don't give a shit about that, because I'm shooting, I'm putting out effort from my end, I'm just putting it out for the one guy who's gonna do it. If you are that guy, you already know what you have to do. You have to just implement it and let me know, and just do it. And don't be broke. If you are watching me and then you are broke, it's a disrespect to firstly you,
and then to me. But I don't care because nothing is going from my end. But if you have someone like me, a walking cheat code sitting in front of you with 50 plus videos and everything that's laid out for you on a silver platter, and you can't just execute, then what the hell are you good at?